Yes, good morning everyone. And today we will start our next topic of chapter Basic Concept of Macroeconomics. Today we are going to start concept and types of investments. As we have already done the concept of goods, different types of goods, now we will start investment. So what is investment? Investment is a process of capital formation or a process of increase in the stock of capital. इन्वेस्टमेंट क्या है? ये एक प्रोसेस है कैपिटल फॉर्मेशन का प्लस इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. Now investment has its two components. One is fixed investment and inventory investment. First is fixed investment. So fixed investment is a gross fixed investment, stock of fixed asset which the producer at the end of the accounting year. फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है? जो एक प्रोड्यूसर एक पर्टिकुलर ईयर में जितना भी वो स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड इज फिक्स इन्वेस्टमेंट. स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज इक्वल टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट विद द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. हाउ वी कैन कैलकुलेट फिक्स इन्वेस्टमेंट? कि एक प्रोड्यूसर के पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितनी थी फिक्स एसेट और इक्वल्स टू इंक्रीज जितना भी होगा दैट इज द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हिम, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हिम. Fixed investment is also called a fixed capital formation. This implies increase in the stock of capital in terms of fixed assets or capital goods which are repeatedly used in the process of production for several years. So what is fixed investment? Fixed investment को हम capital formation भी बोलते हैं because जो भी हम लोग investment करते हैं फिक्स गुड्स में, जैसे कि मशीनरी है, लैंड है, दैट इज़ आर फिक्स्ड एसेट्स एंड दे कैन बी यूज फॉर द सेवरल ईयर्स. सो और उसका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. सो इट इज़ आर कैपिटल फॉर्मेशन और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इट इज़ कॉल्ड. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी. हम एक बिजनेस का स्केल, वेदर इट इज़ लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल बिजनेस, सो इट कैन बी मेजर्ड विद द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी, and the scale of production increases when the number of plants and machinery increases. हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एक बिज़नेस स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल है? वो हम उसके प्लांट एंड मशीनरी के थ्रू पता लगा सकते हैं कि प्रोडक्शन जो स्केल है वो लार्ज है या स्मॉल है. एंड अ पर्सन हैविंग हाउ मच मशीनरी, अगर मशीनरी कम है तो ऑब्वियसली ही इज़ हैविंग स्मॉल प्रोडक्शन स्केल, एंड इफ़ ही इज़ हैविंग लार्ज इन्वेंट्री और लार्ज production machinery, तो he will have large fixed investments. So the scale of production is directly related to the size of fixed investment. तो जो scale of production है वो directly related है size of fixed investment से. And the higher the fixed investment, larger the scale of production. जितना ज़्यादा fixed investment होगा उतना ही ज़्यादा scale of production होगा. And accordingly, higher the level of output, it is a sign of growth and prosperity. जितनी ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, it will increase और it will a sign of growth and prosperity. उतना ही ज़्यादा हमारा जो बिजनेस है it will grow and prosper. Next topic is inventory investment. What is inventory? First is stock. Stock is called our inventory. So at a point of time, producer have with them the stock of finished goods, semi-finished goods or the raw material. So inventory क्या है? Inventory और stock can be of three types. Finished goods का stock हो सकता है, semi-finished goods का हो सकता है या फिर raw material का हो सकता है. तो जो producer इन three types of stock में investment करता है, that is called his inventory investment. So how we can calculate inventory stock? It can be calculated as the closing stock
minus opening stock. Closing stock is the stock that is with us at the end of the year, and opening stock is the stock that is with us at the beginning of the year. तो इन्वेंट्री हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास स्टॉक कितना है, कि जो हमारे पास एंड में बचा है स्टॉक एट द अकाउंटिंग ईयर एंड, प्लस जो हमारे पास बिजनेस के बिगिनिंग में था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जब हम एट द एंड को एट द बिगिनिंग से माइनस करेंगे, दैट वी विल गेट आर इन्वेंट्री स्टॉक. नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट आवर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ accounting year. It is equal to the change in inventory stock during an accounting year. Inventory stock या inventory investment हम लोग कैसे निकालेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट हमने किया था एट द बिगनिंग में और कितना इन्वेस्टमेंट किया था हमने एट द एंड में. तो जितना हमने एट द एंड स्टॉक हमारे पास है उसमें से हम माइनस कर देंगे स्टॉक दैट वी हैव एट द बिगनिंग, and that's how we will get change in inventory stock during an accounting year. Next is significance of inventory investment. So why the manufacturer is invested in inventory. So inventory is stock maintained to cope up with the uncertainties of the market. देखिए जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी प्रोड्यूसर है, उसको इन्वेंट्री स्टॉक में या उसको इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट. सो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज एसेंशियल टू कॉप अप विद द शॉर्टेज ऑफ सप्लाईज. तो हमें कुछ ना कुछ इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है. जैसे रॉ मटेरियल है उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि हमें नहीं पता आने वाली सिचुएशन कैसी है. हो सकता है कि जो सप्लाई में शॉर्टेज हो, तो एट दैट टाइम वी विल नॉट एबल टू कोप अप विद आवर डिमांड और हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर इंक्रीज हो जाती है डिमांड तो. सो दैट्स वाई अ इन्वेस्टर और मैन्युफैक्चरर इन्वेस्ट इन इन्वेंट्री. नाउ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. Gross investment is equal to expenditure on purchase of fixed assets during an accounting year plus expenditure on inventory stock during an accounting year. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है टोटल, कि जितना एक्सपेंडिचर हमने किया है फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में, प्लस जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक परचेज करने में एक अकाउंटिंग ईयर में. बट देयर आर सम पॉइंट्स ऑफ टू रिमेंबर. First is unstocked stock of goods with the producer is considered as purchases made by the producer themselves. अब जो अनस्टॉक स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक गुड्स का, प्रोड्यूसर कंसिडर्ड एज परचेजेस मेड बाय द प्रोड्यूसर themselves. तो they were considered as purchases that was made by the producer and it is the part of the total expenditure, क्योंकि उन्होंने उनको खरीदने के लिए पैसा खर्च किया है. सो ये टोटल एक्सपेंडिचर का ही एक पार्ट है. सो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ worn out fixed assets. And gross investment is equal to net investment and plus depreciation. Thank you. This is our topic investment. Hope you will get it. Thanks.